लाइक जो हमारा यूआई का मेंटर था वो ये कह रहा था कि लाइक आपकी चीजें तो काम कर रही है बट वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रही और सही से मतलब वो शो नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट वीक से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने हैं और हम उसके बाद एग्जाम के जस्ट 3-4 दिन बाद है आपका हैकाथॉन। 1 लाख चेक फॉर दैट ट्रॉफी मिलती है एंड एक आपको क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स पार्टिसिपेटिंग मिलते हैं। विनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटर्नशिप्स ऑफर हुई है, वो गुड स्टाइपेंड लाइक 40 to 50,000। ask you one key factor that you think led to your हेल्प होनी चाहिए, लोगों की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए। So hey everyone, my name is Sanket and welcome to my YouTube channel. Today I'm like very excited to have with me Rohit, who is the winner of Smart India Hackathon 2024. And thank you Rohit for coming to our channel and for having this video. Now let's get started by introducing yourself. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। So hello everyone, myself Rohit Sharma and currently I am final year student at Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology and currently there is an RGIPT campus in Bangalore, so I am situated at Bangalore pursuing my final year because company come there for the placements and in 2024 in December me and my team won Smart India Hackathon, which is a national level hackathon. Our problem statement was like to integrate vocational training into secondary and elementary education because that was the problem statement, like how can you make people aware of like students of from 6th to 12th, like what is the industry demand. So we have to integrate all using VR and VR based learning, that all. Also previously like I have done my summer internship at IIT Jodhpur in 2024 and after that I have also done many internships. So that's all about my from me. Awesome, yeah. Thanks for sharing that. Mm. Like, let's take a step back. Like, was this your first ever hackathon? Like, yeah, इससे पहले भी you have explored hackathons. नहीं, like it's all about start from 2023. Okay. Like first me and my team participated in Smart India Hackathon 2023. At that time, like we are selected at college level, but in PPT round हमारा like team select नहीं हुई थी. So हमने like उस time पे सीखा चीजें like what are the mistakes we have done, like what things we should include in the PPT, like the prototype and what are the flow chart that is very important. So all we learned from that and after that like 2024 में हम पूरे full fledged तरीके से हमने implement किया उस चीजों को और हमारी PPT भी shortlist हुई and then finals में जाके हम लोग जीते भी। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हमारा जो हैकाथॉन था वो ऑर्गेनाइज हुआ था फाइनल। यस। Okay, great. So, like, did you guys choose one problem statement or like you guys had two problem statements in your mind? नहीं, we have choose two problem statements. First of all, like whenever you have to choose a problem statement, like it is like कि आपको देखना है कि आपकी जो टीम है ना, टीम मेंबर्स वो आपके साथ उसके साथ अलाइन हो रहा नहीं हो रहा, like वो स्टैक के अकॉर्डिंग, वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, like आपके पास वो Okay, एक okay. मतलब पहले से चीज वो बनी हुई नहीं है। like हमारे टीम हम्म मेंबर में क्या था कि वन ऑफ द टीम मेंबर हमारा एक था वीआर स्पेशल, लाइक यूनिटी आती थी उसे, तो हमने सोचा था भाई वीआर बेस्ड लेंगे। और क्योंकि इन इंडिया लाइक इट इज मतलब पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है वीआर उससे, तो हमें पता था इतने ज्यादा उसमें घुसेंगे भी नहीं लोग। तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वीआर बेस लिया था, एक अनदर लिया था लाइक Okay. इट वाज लाइक डिसऑर्डर टाइप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट उसमें हमारा कम ही फोकस था, लेकिन हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस था और हमने उसका प्रोटोटाइप भी पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया अच्छा. था। आपको क्या कहते हैं पीपीटी में फ्लो चार्ट आपका सब चीज, मतलब आपको मैं अभी पीपीटी शेयर करके स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे चीजें हमने इम्प्लीमेंट करी थी चीजें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वैसे इम्प्लीमेंट करके अपना शो करें और अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया मैक्सिमाइज करें। Wonderful, yeah. Now let's deep dive into your whole journey. Like, how all this started? Like, from forming the team, managing time, especially like balancing your exams with the traveling for hackathon. सो तो हुआ क्या कि लाइक हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ था, समर ब्रेक होके आया था। अगस्त में हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट होता, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब एसएच का पता चला कि भाई एसएच है, इस बार तो लेना है, मतलब लास्ट ईयर तो जीत नहीं पाए थे, इस बार जीतना है कैसे बिल्कुल. भी करके, भाई कुछ तो करना है। फिर हमने टीम फॉर्मेशन किया, लाइक क्योंकि एक गर्ल तो कंपलसरी रहती है, तो मतलब एक लड़की हमने चूज करी, मतलब जो कि ठीक थी, मतलब लीड सही कर सकती है, उसको ही हमने टीम लीडर बनाया Okay. और उसको एआई और बैकएंड की थोड़ी नॉलेज थी। बाकी जो मेरा जो डोमेन था लाइक वाज फुल स्टैक डेवलपमेंट। आल्सो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज फुल स्टैक डेवलपमेंट, वन वाज in more Okay. like video editing and videography, one was more like unity and ppt creation, and one was like full on ai. So that was all 6 team members, and after that we research all the problem statements, like what can be unique, like मतलब ऐसे रहता है ना कि भाई 500 सबमिशन के बाद उसके बाद जो रहता है वो फिर कितने भी सबमिशन आए फिर उसमें काउंट नहीं होता। हमारा टारगेट ये था कि लाइक वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना जिसमें मैक्सिमम 100 to 150 Okay. सबमिशन आए मैक्सिमम,
और एट द एंड यही हुआ, हमारे दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लाइक मैक्सिमम 100 सबमिशंस आए थे। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने चूज करी, दैट इज 1667, इंटीग्रेट रिलेवेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इनटू सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन यूजिंग वीआर बेस्ड लर्निंग। और सेकंड जो थी हमारी आपकी डिसऑर्डर टाइप की, वो मेरे को याद नहीं है सही से, लेकिन वो हमने चूज किया। देन उसके बाद हमारे कॉलेज में इंटरनल हैकाथॉन हुआ, उसमें हमें पीपीटी बनानी थी और आपका प्रोटोटाइप शो करना था। सो हमने बेसिक बेसिक प्रोटोटाइप बना लिया था, लाइक उसमें कैसे स्टूडेंट्स लॉग इन करेंगे, कैसे एडमिन पैनल एक रजिस्टर करेगा, कैसे स्टूडेंट्स एआई बेस्ड रिकमेंडेशन से वो कोर्स उनके रिकमेंड होंगे, देन कैसे वो लोग क्या कहते हैं आपका क्विजेस अटेंड कर सकते हैं, कैसे अपना जैसे क्विज अटेंड करते हैं तो अगर वो 60% से ज्यादा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है, बैजेस मिलते हैं, तो कैसे अपनी लर्निंग को और मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वीआर से कैसे मतलब वीआर स्टडी कर सकते हैं, वीआर बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। तो वो सब हमने प्रोटोटाइप इंप्लीमेंट करके बेसिक बेसिक शो किया था, तो हम कॉलेज लेवल पे सेलेक्ट हो गए। देन फिर हम हमारा आता है दैट इज आपका पीपीटी सबमिशन। सो पीपीटी सबमिशन में क्या था कि लाइक पीपीटी में ऑल चीजें इंक्लूड करना, दैट इज आपका फ्लो चार्ट है। हमने ये भी किया था कि लाइक हम एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया था लाइक, जिसमें हम अपने प्रोटोटाइप को समझाने, पीपीटी को समझाना, और साइड में हमारे लीडर है, देयर इज गर्ल जो एक्सप्लेन करिए सारी चीजें। साथ में हमने आपका लिंक ट्री का, देयर इज आपका एक क्यूआर कोड भी दिया था, जो आप स्कैन करते हो तो उसमें आपको सारी टीम की डिटेल्स मिलती है, टीम मेंबर्स मिलते हैं, क्या क्या रेफरेंसेस यूज करें और क्या क्या चीजें यूज करी हैं, क्या चीज इंप्लीमेंट करें, वो सब था। इस तरीके से दैट इज ओवरऑल हमने पीपीटी फ्रेम की थी। एंड देन आफ्टर दैट क्या हुआ था, हम वेट कर रहे थे रिजल्ट्स के लिए, तो अक्टूबर नवंबर के अराउंड रिजल्ट्स आए थे कि भाई आपका हो गया है। इस क्योंकि ये रहता है कि मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप सबमिट कर सकते हो, और शायद उनका क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप एक में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो दूसरे का आपको फिर वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते, एक में आपको सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा 1667 वाला में सिलेक्शन हुआ था। फिर डेट्स अनाउंस नहीं थी कि कब होने वाला है। फिर देन क्या हुआ कि दिसंबर में था हमारा, नवंबर एंड से स्टार्ट आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम्स। सो उससे पहले पता चलता है कि भाई 11-12 दिसंबर को आपका स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फाइनल्स होने वाले हैं। अब हमारा क्या था कि हमारे 8 आती डेट्स आ जाएगी, तब से हम मतलब प्रिपरेशन चल रही थी, साथ में बनाते चल रहे थे, लेकिन फुल फोकस तभी रहेगा। अब नेक्स्ट वीक से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने हैं, और हम उसके बाद एग्जाम के जस्ट 3-4 दिन बाद है आपका हैकाथॉन। तो हमारा फुल फोकस ये था कि भाई ये जो 1 वीक बचा है, इसमें हम जितना कर लेंगे मैक्सिमम कर लेंगे, क्योंकि एंड सेम का हमें था पढ़ा भी नहीं था, जैसे कॉलेज में रहता है लास्ट डे पढ़ा जाता है, तो पूरा वो था। तो फिर उस 1 वीक में हमने पूरा फुल फ्लेज मतलब 24 आवर जितना हो सकता था अपना बेस्ट दिया, बनाया, यूनिक चीजें डाली, क्योंकि एट द एंड व्हाट इज व्हाट आर यू गिविंग लाइक यूएसपी, मतलब आपका सॉल्यूशन यूनिक क्या मतलब प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आजकल तो मतलब तो आजकल आज तो इस ईयर तो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा, लाइक प्रोटोटाइप तो हर कोई बना लाएगा, चैट जीपीटी है, कर्सर है, बट यूनिक क्या है, मतलब आपका वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या स्केलेबिलिटी है उस सॉल्यूशन की, है ना, कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स आते हैं, गवर्नमेंट अगर यूज करती है पब्लिक के लिए, तो कैसे वो वैल्यूएबल है लोगों के लिए। तो उस तरीके से हमने यूनिक चीजें इंप्लीमेंट करी, चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी। और हमने पहले भी देखा था कि मतलब उसमें आपको पता चलता है कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कौन कौन सी टीम्स आई हैं, तो हमें एक पता चला था कि वन ऑफ द टीम मेंबर जो था वो बहुत अच्छा वीआर स्पेशलिस्ट था। तो हमने उसको भी सोचा कि भाई वीआर के तो कई वीआर लैब्स लोग बना के लाएंगे, पर उसमें भी हम लोग क्या यूनिक कर सकते हैं, उसमें भी हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, कैसे उन्हें लर्निंग कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि यार वीआर ही क्यों, मतलब हम कॉस्ट कटिंग क्यों ना, क्योंकि हर कोई तो वीआर अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर हमने ओपन सीवीआर की हैंड गेस्चर से आप कैसे मतलब चीजों को ग्रैब करके लर्न कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हमने इंप्लीमेंट करी। सो आफ्टर द एग्जाम्स लाइक 3-4 दिन बाद हमारा चंडीगढ़ में सेंटर था, तो हम लोग फिर गए वहां पे। आपका अराउंड 36 आवर हैकाथॉन होता है, जिसमें आपके 3 मेंटरशिप राउंड होते हैं, 3 जजिंग राउंड होते हैं। तो पहले जाती है आपका रजिस्ट्रेशन होता है, अगले दिन से सुबह 8-9 बजे से ओरिएंटेशन टाइप होता है, देन आपका हैकाथॉन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट राउंड ऑफ मेंटरिंग सेशन होता है। उस फर्स्ट राउंड ऑफ मेंटरिंग सेशन में क्या होता है कि आपको वो लोग देखते हैं कि लाइक आपके आइडियाज क्या क्या हैं, आप क्या क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, तो उन्हें हमें बताते हैं कि वो ठीक है, वो नॉर्मल जाता है। देन फर्स्ट राउंड ऑफ इवेल्युएशन जो होता है वो आपका शाम को 8 बजे होना होता है। बट होता क्या है कि हमारी टीम के जो जजेस होते हैं, वो मतलब हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जजेस था उनको जाना था जल्दी, तो हमारा वो 5 बजे ही होने स्टार्ट हो जाता है। और हमारा इतना कुछ बिल्ड नहीं था, बिल्ड था, लेकिन हमें अब दिखाना था, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले इंप्रेशन में हमें दिखाना था कि हम में दम तो है। तो हमने अपने मतलब जो होते हैं ना कि 2-3 तो ब्रह्मास्त्र छोड़े कि हाँ देखिए हमने ये यूनिक चीज बनाई है। जैसे मैंने 3JS के लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए थे, ठीक है, आप उसमें काइनेमेटिक्स के मोशन को समझ सकते हो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम फेमस होती है 11th की, उसको समझ सकते हो, तो वो हमने एक्सप्लेन किया। तो दे वर लाइक इम्प्रेस, लाइक हाँ बढ़िया है। फिर उसके बाद एक मेंटरी सेशन होता है आपका रात को, फिर फुल नाइट लाइक उनका रहता है कि जैमिंग सेशन, सब चीज एंजॉयमेंट रहता है, आप काम करते रहो पूरी रात को रहता है। और ये रहता है कि अगर टीम मेंबर्स को सोने भी जाना है तो ये रहेगा कि मिनिमम 1 मेंबर तो आपका डेस्क पे रहना चाहिए। देन उसके बाद मॉर्निंग्स में आपका क्या होता है, सेकंड राउंड ऑफ इवैल्यूएशन होता है अराउंड 8 o'clock, जजेस आते हैं। फिर हमने सोचा कि अब मैंने ओपन सीवी और भी जो अदर थिंग्स है उनको दिखाना है, ठीक है। अब वो लोग ये कहते हैं कि देखो आप पे फीचर्स तो हैं, आपकी सारी चीजें हैं,
बट द थिंग इज आपको सारी चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी. ऑल थिंग्स शुड बी इंटीग्रेटेड इन वन. ऑल्सो फुल फ्लेज होना चाहिए, मतलब आपका कंप्लीट. ठीक है. उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ जब मेंटरिंग सेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, हमारा यूआई ब्रेक होने लगा. लाइक Okay. यूआई अच्छा तो है, लाइक जो हमारा यूआई का मेंटर था वो ये कह रहा था कि लाइक आपकी चीजें तो काम कर रही है बट वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रही और सही से मतलब वो शो नहीं हो पा रहा. यूआई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक हम्म. वो आपका जो प्रोटोटाइप होता है ना, उसका भी वो पहला इंप्रेशन होता है, लाइक वो कैसे व्यू हो रहा है, उसको कैसे दिख रहा है ना. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल. अगर अच्छा व्यू होगा तो माइंड में पहले से जाएगा कि हाँ कुछ बंदे ने किया है. हाँ. बैकएंड में तो चीजें चल रही है, वो तो ठीक करना ही है, लेकिन यूआई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम्म. फिर उसके बाद हमने मतलब वर्क किया, ब्रेक हो रही थी चीजें, पर इंटीग्रेट करते गए. देन उसका क्या आता है, डायरेक्टर आता है आपका चेन्नई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, वो देखता है कि हमने क्या बनाया, मतलब वो जजेस ही लेके आए क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे इंप्रेस थे. हम्म. उनको हमने दिखाया वीआर में, वीआर पहना के कैसे लैब्स परफॉर्म हो रही हैं, उनको भी अच्छा लगा. फिर जब फाइनल मेंटरिंग सेशन हुआ, वो फाइनल जो जजिंग राउंड हुआ आपका 5 o'clock, उसमें हमने फुल फ्लैश तरीके से उनको जो दिखाया, उसमें एक आपका AWS का एक बंदा आया था जो जज था. ओके. बाकी अलग अलग कंपनीज के थे, तो उनको हमने जो दिखाया, तो मुनीश जिंदल सर थे जो कि मैं उनके बहुत थैंकफुल रहेंगे, क्योंकि हमें जज होते हुए भी साथ ही साथ मेंटर करते कि आप ये करते रहो, ये करते रहो. जज अच्छा. होते हुए भी मेंटरिंग करते रहे. और हम्म. उनको हमने फुल फ्लैश तरीके से पूरा, मतलब मेरा तो ये तक लाइक मैं कंटिन्यूअसली 50 आवर्स जगा था. बाकी कुछ लोग थोड़े बहुत सोते रहे थे, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली 50 आवर्स जगा था. और मैंने वो ओके. हर चीज को देखते हुए इंप्लीमेंट करता रहा था कि यूआई भी देख रहा हूँ, बैकएंड भी देख रहा हूँ, हम्म. मोंगोडीबी सब देख रहा हूँ. फिर मैंने वो हम लोगों ने पूरा उन्हें अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया. वो बहुत खुश थे, हैप्पी थे. फिर आपके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, हम जाते हैं और जीत जाते हैं. सो ये था पूरा 50 आवर का, 36 आवर. Wow, yeah, these were like really valuable insights, and I hope like जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे they will like to follow your footsteps. And एक क्वेश्चन था like if you have any advice and strategies for the people. यार स्पेशल स्ट्रेटेजी ये रहेगी, लाइक मतलब आपको हर सेकंड वहां लगेगा कि यार हम लोग हार रहे हैं, हो सकता है कि हमारे हमसे जो बेटर अदर टीम मेंबर्स हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अदर टीम्स के, है ना, उनका यूनिक है. पर आपको क्या सोचना है कि भाई 36 आ रहे हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट लेके चलना है, टीम वर्क करना है साथ में. ये नहीं कि भाई अगर दूसरा बंदा थक गया कि मेरा काम ये है, मैं इतना ही करूंगा, वो उतना करेगा तो वो उसका करना है. लेकिन हमें अगर वो नहीं कर पा रहा बाय चांस, तो आपको ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है ना. टीम वर्क पूरा कर रहना चाहिए. और मतलब नेवर गिव अप होना चाहिए. लेकिन लाइक मेरे को भी एक मोमेंट पे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बट करते रहो. एट द एंड अगर आप पूरा फुल एफर्ट मारते हो ना, तो आप फिर कर लोगे. तो बिल्कुल ये है कि बिल्कुल. नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, टीम वर्क रखना है, और मतलब करना है तो करना है, बस यही दिमाग में रहना चाहिए. फैंटास्टिक यार. नाउ एज यू नो लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट और लाइक सबसे लाइक इनिशियल स्टेप होता है, तो उसके बारे में कुछ इंसाइट तुम देना चाहते हो तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट का यही है कि आप रिसर्च करो, उसमें देखो कि यार आप सबसे पहला तो फर्स्ट थिंग लाइक कोई भी ऐसी नहीं कि बड़ी चीज है भाई ये तो मतलब खतरनाक बन सकता है, इसको चूज करते हैं. मतलब देखो आपके पास जो टीम मेंबर्स हैं उस हिसाब से अलाइंड हो रहे नहीं हो रहे चीजें. आपने ऑलरेडी उस पे चीज कोई बिल्ड करी नहीं कर रखी, क्योंकि आपको एट द एंड फुल फ्लैश सॉल्यूशन दिखाना है. आप जस्ट प्रोटोटाइप से तो नहीं जा पाओगे, है ना, बिल्कुल उसमें पूरी बिल्कुल. चीज बिल्ड करनी है अच्छे से, हाँ. है ना. कुछ आपने पहले से कुछ बिल्ड कर रखा नहीं कर रखा, देन उसमें आप देखना है यूनिकनेस, लाइक कॉमन नहीं कि भाई चैटबॉट है, चैटबॉट पे तो हर कोई बना लेगा, चैटबॉट के तो बहुत सबमिशंस आ जाएंगे, है ना. ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो गए आपके. AIML तो अभी बहुत कॉमन है, जैसे हाँ. VR बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो गए. ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे अगर आप जाओगे तो ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेगी, बिल्कुल. है ना. हाँ. कंप्यूटर विजन वाले हो गए, है ना, या फिर आपके मैं कह सकता हूँ लेटेंसी वाले, लाइक हमारे जो एक हमारे टीममेट थे जो सामने वाले टीम मेंबर्स थे, उनका ये था लाइक जो विलेज एरियाज में लोकल लोग रहते हैं, तो जैसे जूम मीटिंग्स रहती है तो उनका नेटवर्क ब्रेक कनेक्शन होता है, तो उनका नेटवर्क्स के ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, कैसे आप स्मूथ कर ओके. सकते हो, लेटेंसी को कम कर सकते हो. So, ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को चूज करना है कि हाँ मतलब आपको लॉन्ग टर्म देखना है कि भाई उसमें सबमिशंस इतने तो नहीं आने वाले, है ना. और फिर आपको शोकेस भी इस तरीके से करना अपने प्रॉब्लम को पीपीटी के थ्रू कि हाँ आपका ही सॉल्यूशन यूनिक है, आपका बेस्ट है, इस तरीके से. बहुत सही यार. एंड इफ आई आस्क यू वन की फैक्टर दैट यू थिंक लेड टू योर विन इन द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. लाइक यार वही नेवर गिव अप एटीट्यूड प्लस टीम वर्क, दैट्स द ओनली वन लाइन दैट विल लेट यू विन द हैकाथॉन. ओके, गुड वन यार. और लाइक इज देयर अ सिंगल विनर फॉर ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या फिर लाइक जॉइंट विनर टाइप्स भी होते हैं लाइक हर एक प्रॉब्लम का. हाँ ये रहता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक विनर रहेगा, बट ये भी कई बार हो जाता है लाइक कि जॉइंट विनर्स भी वो अनाउंस कर देते हैं जजेस, अगर क्रैश करता है लाइक उनके, क्योंकि हर एक जजिंग सेशन के बाद आपका पॉइंट्स असाइन होते हैं कि लाइक दिस आर द पॉइंट्स दैट आर यू गेट फॉर यूआई फॉर योर इंप्लीमेंटिंग दिस, लाइक वो रिपोर्ट पूरा नोट करते हैं कि मेंटरिंग सेशन में आपने जो जो चीजें आपको मेंटर हुई वो आपने इंप्लीमेंट करी नहीं करी. So, उस हिसाब से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक ही विनर होता है मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन बट 1 to 5% चांस होता है कि लाइक जॉइंट विनर्स भी अनाउंस हो जाते हैं, बट रहता वन विनर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को. लाइक यू
1 लाख चेक फॉर दैट, एंड ऑल्सो इंडिविजुअल आपको ट्रॉफी मिलती है, एंड एक आपको क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स पार्टिसिपेटिंग मिलते हैं, विनिंग के मिलते हैं, एंड आपको एक वन कहते हैं बिग ट्रॉफी मिलती है दैट इज विनिंग टीम को. हम्म. Yes. Also, many problem statements have internships for the winners for the next year. Okay. Like मेरे फ्रेंड्स थे जो ब्लॉकचेन बेस्ड हैकाथॉन में जीते थे, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटर्नशिप्स ऑफर हुई, और वो गुड स्टाइपेंड लाइक 40 to 50,000 फॉर समर. हम्म. ऑल्सो हमसे भी पूछा गया था लाइक आपका कि इंटर्नशिप्स के लिए हमने भरा था, लेकिन हमें अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, बट हाँ इंटर्नशिप्स ऑफर होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो विनर्स ऑफ हैकाथॉन Great. होते हैं. और एक और क्वेश्चन था कि लाइक डिड यू गाइस फॉर्म योर टीम फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक फॉर दैट हैकाथॉन, और लाइक यू हैड अ सेम टीम फॉर ईच एंड एवरी हैकाथॉन दैट यू पार्टिसिपेटेड? नहीं यार, इट डिपेंड्स लाइक ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लाइक मतलब अगर आपका मतलब मोस्टली ये जो टीम फॉर्मेशन होती है एसआईएच के लिए पिछले साल, वो तो मतलब पहली बार हुई थी वो वाली हमारी जो टीम मेंबर्स के साथ थी. बट पहले जो थी वो हमारी अलग टीम थी. और लाइक और जो मेरा मतलब जो वन ऑफ मतलब टीम चेंज होती रहती है. लाइक हम लोग का ग्रुप है 10 to 12 लोग का, वो टीम्स अलग अलग वो बनती रहती हैं. वो लोग जो थे पहले भी एक इसरो का आपका फेस्टिवल था, उसमें नेशनल लेवल हैकाथॉन जीत के आए थे इसरो का 2024 जनवरी में, है ना. मेरा ही टीम मेंबर जो था, मेरा ही रूममेट है, और वो अलग मतलब 2 टीम मेंबर्स उसमें से थे, 2-3 अलग टीम में से, तो वो लोग जीत के आए थे. तो ऐसे-ऐसे हम लोग मतलब कोलैबोरेटली पार्टिसिपेट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैकाथॉन्स में, एक दूसरे तरीके से पीयर टू पीयर. बहुत बढ़िया यार, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम फॉर विनिंग दिस नेशनल लेवल हैकाथॉन, है ना. थैंक्स भाई. एंड जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप रोहित को लिंक्डइन पे लाइक बात कर सकते हैं, है ना. जरूर जरूर जरूर. हाँ, ओके. थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीट.